Good afternoon, everyone. Today is the second day of our 2 days workshop on innovation and intellectual property right. Myself, Rachna Bajaj from Department of Civil Engineering, Rabindranath Tagore University. Now, I would like to have a brief introduction about today's great personality, Professor Dr. Mona Purohit Madam. She is the Dean and HOD, Faculty of Law, BU Bhopal. She is the Member Executive Council, BU Bhopal. She assists as a member in preparation of various ordinances of MP Private University Regulatory Commission, Bhopal. She has been an examiner of undergraduate, postgraduate and PhD of various universities across the country. She has also attended various webinars since 2020. Now the various position of responsibility: member of inspection team constituted by MP Private University Regulatory Commission, Bhopal, for inspection of law courses in some private universities. Expert regarding pre-submission defense committee meeting for PhD thesis at Jagran Lake University, Bhopal. Member IQAC cell, Rajiv Gandhi Government College, Ambikapur, Chhattisgarh. Member Board of Studies of Law and Board of Faculty, Jivaji University, Gwalior. Reviewer of adjudging the best paper among the student category in International Conference on 2nd and 3rd October 2015. Worked as a member of Board of Study, Exam Committee, Result Committee, Committee of Convocation, NAC, RDBB, Jabalpur. She worked as course coordinator IGNOU in RDBB Study Center, Jabalpur. Visiting faculty NARONHA, Administrative Academy, Bhopal, NLIU, Bhopal, Bhuj Open University, Bhopal, SSB, Madhya Pradesh. She has the publication of number of books and papers. She is the research supervisor for PhD also. She is invited as a speaker and chairperson in number of events nationally. She has also achieved various awards like Seva Samman, RDBB Jabalpur, Shiksha Ratan Puraskar from India International Friendship Society, New Delhi, Lifetime Golden Achievement Award by Social and Legal Research Foundation, Varanasi, Vidhi Gaurav Award Law Award by Social and Legal Research Foundation, Varanasi, Best Law Teacher 2020-21 Award by University of Allahabad, Android Penal Group, Prayagraj at 4th National Symposium and Awards. She has also the academic contribution, Member Editorial Committee, Law and Society, Member Advisory Committee, Research Diary, ISSN 24544183, Divakar Publication and Printer, Bhopal. She is also the Member Editorial Board, Journal Adhikar, Banaras. Associate Editor, Cyber Affair is a registered quarterly magazine. She is also the Member Editorial Board, 15 Days, Banaras. She has also the lifetime membership, All India Law Teachers Congress, New Delhi, Journal of Mahila Vidhi Bharati, New Delhi, Journal of Central India Law Institute, Jabalpur. She is also the regular speaker to share views on various legal issues for legal awareness program through the. Now, without further ado, I would like to invite ma'am for the initiation of the webinar. Over to you, ma'am. Thank you, Rachna, for such Ma'am, a actually, introduction of mine. your profile is so wide. Actually, it's not possible for me to explain in this within 2 or 3 minutes. I will try to elaborate the profile for this. Sorry for this. It is not possible for me. There's no need of this introduction. I think we all are familiar with the issues which we are going to discuss on. And I think all the participants are able to understand and maybe they have idea on which topic we are going to speak. Yeah. That is the intersection of intellectual property rights and research. Right? These are the two areas. How important IPR for the research. Yeah. So as we speak, and I came to know that there are a number of students also who are participating
So I will just try to, I can say, simplify my issues where maybe they are not doing much research like the academician who are doing in PhD and all, but being a law scholars, being a law student, they all are supposed to involve in research. May they are trying to go for the advocacy, even though they are supposed to do research, right? Yeah, we are What are trying the to valid law at the time, right? Until and unless they produce that before the court, it is not valid. Even every judge is going to do the research work. So, in this direction, what should be seen? What are the requirements that I'm going to share? yeah, And for that, I'm just prepared a PPT. I'm going to share that. If it is visible to all of you, please let me know, ma'am. It is please visible. share your screen. Yeah. If it is visible, let me Yeah, know. ma'am. Please make the full preview. Yeah, I am. So, It is visible, right? yeah, ma'am. So Sure. I am playing that screen now. That's I full think it is preview. full screen or Yeah, ma'am. easily. Okay. So as I told you, what are the intersection between intellectual property rights and the research? There are number of intellectual property rights, but I would like to confine myself to these two areas broadly: the patent and the copyright, and how they are interrelated with the research, how they will play. Because as I am telling you that there are a number of intellectual property rights, so I am going to confine the most important. No doubt that trademark will be there, but it is a limited implication on the research. So I'm just going to confine myself to the patent, copyright, and the research. These are the various important concepts which I would like to discuss before. What is IPR? I'm going to give a brief introduction about what is IPR and what is the difference between IPR and IP. Sometimes people use them as a synonyms. For them, intellectual property and intellectual property rights are the same, but it is not so. So, what is the difference between IP and IPR? What is a research? What are the various type of research? Role of IPR in research? What are the important provisions related to IPR which are or which should be taken care by the researchers? That is the Bolar provision, the plagiarism, the ethical and legal duties of the research scholar, the compulsory license provision, the prior art search, the process versus the product patent, and especially the invention versus innovation. That will give you a brief outline how to proceed with the research. So these are the various important concepts which I am going to discuss. Let me know whether all are comfortable with the English or they want me to discuss in a mixed language. I'm also comfortable in that, no issue for that. So, what is the Actually, from requirement the of listener side, ma'am, it is both Hindi and English. Then it's that's easy why for the students to understand the actual concept. that's why I'm saying that. That's why I'm Yeah, asking this ma'am. question because Yeah, I know because the mother listeners, tongue is always a better this thing. So I will try to explain in yeah, this. ma'am, yeah, ma'am. Right? सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. व्हाट इज द रीजन? हाउ कैन आई, being a teacher, being a researcher, can say that a researcher must know the penumbra of laws? Maybe you are from different field, from the science, from any other field, but still you have to be keen about, you have to be aware about the laws, because ignorance of law is of no excuse. अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो क्या वो ये बोल सकता है कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो पढ़ना भी नहीं जानता, चोरी करना अपराध है? दे कैन नॉट क्लेम दैट. वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉ का एक प्रिंसिपल है कि इस मतलब जिस कंट्री में आप रहते हैं उस जगह की विधि जानना आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है. आप ये बोल के नहीं बच सकते कि यहाँ पे लॉ क्या है मैं नहीं जानता. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों आपको लॉ पता होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड से हैं तब भी, क्योंकि हर फील्ड में लॉ गवर्न होता है.
जैसे अभी आप रिसर्चर होंगे तो सब जानते होंगे कि प्लेजरिज्म अगर है तो आपकी रिपोर्ट कैंसिल हो जाएगी। आपको जो फॉर्मेट फिक्स फॉर्मेट दिया गया है आपकी यूनिवर्सिटी से, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, यू हैव टू फॉलो द क्राइटेरिया। कब डिक्लेरेशन देना है, कब सर्टिफिकेट है, क्या कोर्स वर्क होता है, एवरीथिंग यू हैव टू फॉलो। व्हाट आर दोज आर लॉज। तो हर एरिया आपका लॉ गवर्न करता है, आपके घर से लेके बाहर तक का आपका एम्प्लॉयमेंट हो, आपकी सैलरीज हो, आपका पेमेंट हो। तो अगर आप ये बोलते हैं लॉ नहीं जानते हैं तो भी नहीं चल सकता। तो एक और रिसर्चर के रूप में तो आप क्या है, एकेडमिकली हायर पोस्ट पे है, बहुत साउंड है, एजुकेटेड, जो वेल एजुकेटेड पर्सन है उस कैटेगरी में है, तब तो आपसे एक्सपेक्टेशन और हाई हो जाते हैं। फिर जो एक और चीज लोगों को जानना होती है कि जो राइट्स होते हैं वो लोगों को लगता है जो चीज मुझे दिखाई देती है, टेंजिबल मीन्स एनीथिंग विच यू कैन एक्सपीरियंस बाय योर 5 सेंसेस, छू के टच करके जिसको आप पहचान सकते हैं, वो क्या होता है, टेंजिबल प्रॉपर्टी। सो लोगों को ये लगता है कि हर कुछ टेंजिबल प्रॉपर्टी जो मेरी थीसिस हाथ में आएगी वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, बट दैट थीसिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ यू। उस थीसिस में जो आपका आइडिया, जो आपने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट इज व्हाट प्रोटेक्टेड अंडर लॉ। वो थीसिस आपकी कॉपीराइट में अलग प्रोटेक्शन होगा। तो एक ही चीज के लिए आपको प्रोटेक्शन कितने डिफरेंट डिफरेंट है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज। आपके इंटेलेक्ट को आप क्या समझते हैं, जब आप एकेडमिक्स में आते हैं, बहुत हायर उसमें रिसर्च करते हैं, तो आपको क्या बोला जाता है, ओ दे आर इंटेलेक्चुअली साउंड, फुल प्रूफ। तो अगर आप उनको इंटेलेक्चुअली हायर लेवल पे रखते हैं तो उनके उस इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसलिए वो पैसे कमा रहे हैं। तो व्हाट इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, दैट हैज टू बी सीन, दैट हैज टू बी अवेयरनेस, दैट हैज, ये लोगों के अवेयरनेस का पार्ट होना चाहिए। और बेसिकली जब आप रिसर्च में आए तो बाकी कॉपीराइट और पेटेंट के अलावा बाकी भले ही आप आईपीआर थोड़ा कम समझते हो, पर अगर आप एक पेटेंट और कॉपीराइट के ज्ञाता नहीं है, जानकार नहीं है, तो यू विल बी इन ट्रबल। आप आगे जाके बहुत फ्यूचर में आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ड्यूरिंग द रिसर्च एज वेल एज आफ्टर। तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग। What are the various type of property? As I told you, there are intangible and tangible property. Tangible example के लिए your house है, आपका फर्नीचर देख रहे हैं, आपकी गाड़ी देख रहे हैं, आपकी जमीन जायदाद, ये सब आती है tangible property में। और intangible property वो होती है जो कि आपको दिखाई में नहीं देती। जैसे आपने किसी के साथ बॉन्ड भरा, बॉन्ड का जो फॉर्मेट हो गया वो तो आपकी tangible property में आ गया, पर वो तो कुछ काम का नहीं है। उसके अंदर जो 1000 रुपीज और 10 लाख का एक ही चेक है, उस चेक में आपने 10,000 भरे, उसी चेक में आपने 10 करोड़ भर लिए, वैल्यू चेंज हो रही है, राइट? जो वैल्यूज चेंज हो रही है उसके साथ आप क्या चेंज कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ आईपीआर। तो इंटेलेक्ट जो एक व्यक्ति का होता है, तो एक व्यक्ति का राइट टू ओन इट्स ओन property within the law and used by other person with the authorization is the licensing। ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी खुद भी यूज कर सकते हैं और दूसरे के द्वारा भी यूज कराई जा सकती है। अब देखिए एग्जांपल समझिए, एक घर है, उस घर में कभी भी पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट दिखाई नहीं देता है, पर पेरेंट्स और बच्चे एक घर में रहते हैं और आप अच्छे से बोलते हो ये मेरा घर है। वो प्रॉपर्टी फादर के नेम से अगर लॉ में कोर्ट में जाओगे तो बोलेंगे भैया ये आपके पापा के नाम की प्रॉपर्टी है, आपका इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 बच्चे, वाइफ सब रह रहे हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी वहां दिखाई दे रही है, पर यहाँ जो इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है विच इज नॉट विजिबल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं, तब भी दैट इज अ प्रॉपर्टी। एक डिफरेंट, वो बहुत सारे मैटर्स हैं दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट आपको यहाँ समझना है कि आपको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने का अधिकार एज अ रिसर्चर मिलता है। फिर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड आईपीआर। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत प्रकार की हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी पेटेंट है तो इन्वेंशन में मिल गया। फिर एक होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, है ना, कोई डिजाइन है आपने बनाया है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने मान लीजिए कोई डिजाइन क्रिएट किया है, आजकल तो फैशन डिजाइनर्स भी होते हैं, आप देखते हैं उनके भी राइट होते हैं।
पर उनको जो ये क्या है, आईपी है, और इसमें लेकिन उनको जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो पेटेंट का मिलेगा। तो ध्यान में देखिए, मेरी बात को इसमें बहुत क्लियर समझेगा। प्रॉपर्टी राइट्स बोले तो केवल 3 है, राइट्स की बात कर रही हूँ। राइट्स 3 प्रकार के ही होते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। अब मान लीजिए आपने डिजाइन बनाया है तो वो आपको प्रोटेक्शन पेटेंट एक्ट के अंतर्गत नहीं मिलेगा, डिजाइन एक्ट के अंतर्गत मिलेगा, लेकिन राइट कौन सा मिलेगा, पेटेंट का राइट मिलेगा। मान लीजिए आपने बहुत सुना होगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, है ना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, जिसको भौगोलिक इंडिकेशन के सूचकांक के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कोई कम्युनिटी है, कुछ लोग हैं, लोकल लोग हैं, जहां पे वो प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बनारसी साड़ी, आप किसी एक को दे सकते हो क्या कि ये प्रोडक्ट बनाने वाला है बनारसी साड़ी का? नहीं दे सकते, क्योंकि कब स्टार्ट हुआ, यू डोंट नो द इंसेप्शन डेट एंड हु इज एक्चुअली डूइंग दैट वर्क। सेम बासमती राइस कुछ जगहों की फेमस है। तो ऐसे बहुत सारे जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से चंदेरी साड़ी, अब चंदेरी इज अ प्लेस, हु इज प्रिपेयरिंग चंदेरी साड़ी, यू कैन नॉट क्लेम, नोबडी कैन, राइट। बाग प्रिंट, मैं केवल आपको वो एग्जांपल दे रही हूँ जहां आपको समझना है कि ये सब जियोग्राफिकल इंडिकेशन के पार्ट हैं, लेकिन इसमें आपको राइट कौन सा मिलेगा, पेटेंट का राइट। कौन सा मिलेगा, पेटेंट का राइट मिलता है। अब एक चीज और समझिए आप कि जैसे आपने ट्रेड सीक्रेट वगैरह भी समझा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ मैं ट्रेड सीक्रेट भी थोड़ा सा, वैसे शायद आगे मैंने डिस्कस किया जरूर होगा क्योंकि उसके बिना नहीं बताऊंगी। देखिए, ट्रेड सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बट दे आर द पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कैसे और क्यों, समझे। आपके यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग, जब आप मान लीजिए पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क्स में से कुछ भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी चीजें जो आपने डिस्क्लोज किए, जो डिस्कवर और इन्वेंशन किया, उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है बिफोर द ऑफिस, कि मेरा इन्वेंशन कैसे यूनिक है, कैसे न्यूनेस है उसमें, क्या यूटिलिटी है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट एंड यू आर गोइंग टू डिस्क्लोज दैट बिफोर द ऑफिस। और फिर वो आपको देख के चेक करके पूरा एक लंबा प्रोसेस के बाद आपको वो अवार्ड होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वो डिस्क्लोज हो गया तो क्या होगा, पब्लिक में आ जाएगा, और पब्लिक में आ गया तो दूसरे लोग भी उसका उपयोग करने लगेंगे, आपकी तो वो सीक्रेसी मेंटेन नहीं हुई। तो इस तरीके के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनने जो स्पेशल मैजिक मसाले बनाए हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको वो ट्रेड सीक्रेट के रूप में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या उसको जो है वो इंफॉर्मेशन को अपनी कैसा रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत हल्दीराम भुजिया वाला, मैं वो एग्जांपल दे रही हूँ जो शायद आपकी डे टू डे लाइफ से बहुत जुड़े हैं। हल्दीराम भुजिया वाला का पेटेंट नहीं है, उन्होंने क्या करा रखा है, ट्रेड सीक्रेट, कि मैं अपना जो भी उसमें मिलाता हूँ वो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ऑल्दो यू नो कि हेल्थ रीजन से अगर कभी ऐसा आएगा तो दे कैन क्लेम, बट अदरवाइज जो नॉर्मल पब्लिक डिस्क्लोजर होता है वो उनके ऊपर नहीं लागू होता है। इसलिए जो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नोवेल्टी के साथ आते हैं, तो दे समटाइम डोंट वांट टू इवन गेट द patent, they are happy with their trade secret if they are earning well, राइट। तो पेटेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो यही होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, कमर्शियल पैसा मिले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ट्रेडमार्क तो आप सब जानते हैं कि जब भी आपको ट्रेडिंग में जाते हैं तो उसके ऊपर एक मार्क होता है, आप जैसे देखते बोलते ओ ये तो ताजमहल का है, ओ ये तो ब्रांड नेम किसका है, मुझे तो ये मर्सिडीज का दिख रहा है। तो ट्रेडमार्क तो मुझे नहीं लगता कि एक एम्बलम होता है जो किसी व्यक्ति को ये फ्रीडम देता है कि वो उस नाम से ट्रेड करे, ताकि लोग जो हैं दूसरे के साथ उसको मिला के कंफ्यूज ना हो। आप बिल्कुल तुरंत देखेंगे नहीं ये तो गोदरेज का है मटेरियल, जिसका भी आपको पसंद है, तो वो उनके ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत ट्रेडमार्क आते हैं। और कॉपीराइट आप जानते हैं एक ऑथरशिप वर्क, यहाँ जब आप रिसर्चर देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर जो इस पे मैं आपका ध्यान दिला रही हूँ वो कर रही हूँ कि आपकी ऑथरशिप और आर्टिस्टिक वर्क, क्योंकि या तो आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, म्यूजिक में कर रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, फैशन डिजाइनर बना रहे हैं, कंप्यूटर सर्किट बना रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, दे ऑल कम्स अंडर द
कॉपीराइट। तो कब कैसा आएगा वो एक अलग अलग बात है। तो क्यों लोग कॉपीराइट प्रोटेक्शन चाहते हैं? बिकॉज उनको रिकग्निशन मिलती है समाज में, और उसके अलावा वो अपने राइट का कमर्शियल यूज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द कॉपीराइट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईपीआर? तो मैं शायद आपको बता चुकी हूँ कि आईपीआर जो है उसके अंतर्गत पेटेंट जो है वो मिलता है आपको प्लांट वैरायटी के लिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए। ये आईपीआर इसके अंदर मिलते हैं ना, ये आईपीज हैं और इनके अंतर्गत आईपीआर मिलते हैं। आपका इंटरनल सर्किट लेआउट डिजाइन है, डोमेन नेम के लिए मिलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो बहुत सारी चीजें हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द फ्यू एग्जाम्पल। बट आपको एक अंडरलाइन करके मैंने लिखा स्यू जेनरिस सिस्टम, ठीक है। स्यू जेनरिस का मतलब होता है एक सेपरेट लेजिस्लेशन, उसी के अंतर्गत सब मिल जाए। तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया प्लांट वैरायटी, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या है? स्यू जेनरिस है। जैसे पेटेंट एक्ट आपको एक मिलेगा और उसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन आईपी के मिल जाएंगे। कॉपीराइट एक्ट एक मिलेगा लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, वो स्यू जेनरिस नहीं कहलाता। स्यू जेनरिस कहाँ पे है? प्लांट वैरायटी एक्ट, जियोग्राफिकल, जो केवल स्पेशली फॉर वन टारगेटेड वो है, तो वो अलग से दिए गए हैं। आईपी को क्यों प्रोटेक्शन मिलना चाहिए भाई? आपका जो आपने प्रोडक्ट बनाया है तो क्यों मिलता है? क्योंकि दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इट्स ओरिजिनेटर। जिसने इसको बनाया है उसका ब्रेन चाइल्ड को समाज रिकग्नाइज करता है कि आप में कुछ ऐसी बात है जो सामान्य जनता में नहीं है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए आइंस्टाइन जैसे चीजों को आपने सपोर्ट किया। क्यों? उनके इन्वेंशन अगर प्रोटेक्ट नहीं होते तो फिर दूसरा व्यक्ति है, दूसरा इन्वेंशन क्यों करेगा अगर उसको बेनिफिट नहीं होगा। तो आईपीआर अप्लाई टू न्यू ओरिजिनल नॉलेज, नॉट टू व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस। अब देखिए आपको रिसर्च में क्या करते हैं, आप इसको यहीं से अंडरस्टैंड करें कि कितना कॉमन है आईपीएन रिसर्च, ठीक है। कि रिसर्च जो होता है आपसे बार बार क्या किया जाता है, आपका हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट यू हैव मेंशन इन योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब व्हाट इज ऑलरेडी डन, यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट थिंग। योर रिसर्च वर्क हैज टू बी यूनिक वन। सेम विद द आईपी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बोलता है कि आपका जो वर्क है वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और रिसर्च की भी यही डिमांड है और यही आपके कारण होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का जितना पोर्शन होता है आप उसमें यही बताते हैं जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं कि पिछले रिसर्च से आप में क्या सिमिलैरिटी है एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस, what are not covered by your previous author, your previous researcher, what you are covering in this. This is what the review of literature's demand, ठीक है। वही चीज यहाँ पे आप देखा होगा ना आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को लिखने का तरीका। पहले आप लिखते हैं कौन सी बुक है, कौन सा आर्टिकल है, फिर आप लिखते हैं आपके रिसर्च में वो कैसे कॉमन है और फिर वो कैसे डिफरेंट है। तो ये आपका यूनिकनेस बता रहे हैं। फिर दूसरी बात है पब्लिक डोमेन नॉलेज कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। पेटेंट के मामले में आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा क्यों एक ही तरीके की, देखिए मान लीजिए आप कोई किताब लिखने जाते हैं, ठीक है, इसको कितने अच्छे से आप समझ सकते हैं। अगर लॉ के स्टूडेंट है तो और अच्छे से, बाकी सब्जेक्ट में भी। लॉ में कोई भी विधि का छात्र या छात्रा जो भी है वो क्या नहीं बना सकता। कोई बुक अगर पहले से पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है आप उसको इंटरप्रेट ही तो करोगे, आप लॉ तो नया नहीं बना दोगे। आप बनाओगे क्या, आप क्या करोगे, आप जो सेक्शन वाइज एक एक्ट में लिखा हुआ है उसको एज इट इज उठाओगे, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक पब्लिकेशन। जजमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, दैट जजमेंट इज ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड बाय द जुडिशरी, और जुडिशरी के जजमेंट को चेंज करने का पावर आपके पास है ही नहीं। तो व्हाट काइंड ऑफ यूनिकनेस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, इट इज ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन। तो आपको क्या मिलता है जब आप प्लेजरिज्म वगैरह करते हो, तो इतने परसेंट की रेफरेंसेस हैज टू बी देयर। तो एक रिसर्चर पिछले बुक वाले ने क्या लिखा है, पिछले जो थ्योरीज प्रोपाउंडेड हैं वो सब हो चुकी हैं, जैसे आपने सुना था अर्थ गोल है, फिर कोई बोल रहा है फ्लैटन है, सब अलग अलग बहुत सारे वो हुए। तो ऐसे एग्जाम्पल में आपको अगर कोई नॉलेज पब्लिक डोमेन में है उसको पेटेंट में प्रोटेक्शन नहीं कर सकते अनलेस इट इज मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड। अंडरलाइन, इट मींस इन्वेंशन कैन बी इनोवेटेड
यू कैन इनोवेट समथिंग. मान लीजिए एक व्यक्ति ने जब कोई मोबाइल का पूरा डिजाइन बनाया था, वो तो इन्वेंशन था. आपने बोल दिया कि ग्रामोफोन जो है, इन्होंने फोन का आविष्कार फलाने ने किया है, बल्ब का आविष्कार इसने क्या किया ना. तो क्या बल्ब के बाद ट्यूबलाइट बनाने में, या बल्ब के बाद सोलर ऊर्जा से लाइट बनाने में, या बल्ब के बाद इमरजेंसी लाइट बनाने में कोई चेंजेस हुए? क्या बल्ब की जो डिजाइन है उसको पेटेंट करवा सकते हैं आप? नए नए बल्ब की डिजाइन, एक गोल था, एक बिल्कुल स्टाइलिश बल्ब आ रहा है आज बहुत अलग तरीके के. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग द डिजाइन. सो इन्वेंशन से आप कहाँ जा रहे हो? इनोवेशन की ओर. तो नॉट ओनली द इन्वेंशन बट सम टाइम मॉडिफिकेशन एंड द improvement in the invention could be considered as a suitable source for patent. Same with the research. रिसर्च में क्या हो रहा है? वही एक लॉ पूरा पार्लियामेंट ने पास किया है. फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपके सामने है, और हर रिसर्चर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे मान लीजिए 50 रिसर्चर ने अपना रिसर्च किया, तब भी क्यों आप उसके बारे में क्लेम नहीं करते? क्योंकि एक रिसर्च इन एमपी, एक करेगा डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम 2015 से 2020 तक का, एक रिसर्च स्कॉलर करेगा कि अभी कोविड के ड्यूरेशन में क्या डोमेस्टिक वायलेंस था. पर एक्ट तो सब कॉमन लिखेंगे, बट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ. So these are the very practical example how you can compare your research with the IPR. Next is a new method to be evolved for protecting traditional knowledge. अब देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज आपके यहाँ पे आपने खूब लोगों ने सुना होगा, बासमती राइस है ना. इंटरनेशनल लेवल पे हमने उसको देखा था. टर्मरिक के बारे में आपने सुना होगा, तुलसी के बारे में. जितना आपको नॉलेज में होगा, जितने लोग सुन रहे होंगे, मैं नहीं जानती किस किस कैटेगरी से कहाँ है, बट दीज आर द वेरी कॉमन इश्यूज जो इंटरनेशनल लेवल पे भी गए, कि हम तो वर्षों से अपनी हल्दी को एंटीबायोटिक के रूप में यूज कर रहे हैं, हम तुलसी का उपयोग इस काम के लिए कर रहे हैं. तो हुआ क्या, जब हम लोगों को बता रहे थे कि टर्मरिक का उपयोग इसलिए इसलिए, तो वो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी. अब उस ट्रेडिशनल नॉलेज को उन लोग ने चेंज किया, बासमती राइस, तो वो क्लेम करने लग रहे हैं कि हम उस टर्मरिक का यूज कहाँ और किस तरीके से कर रहे हैं. तो आपने क्या किया कि कुछ न्यू मेथड के द्वारा ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने की बात. नहीं तो क्या होता, आपने मान लीजिए टर्मरिक को ही खुद ने पेटेंट करवाया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी मेथड में टर्मरिक से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप उसका यूज करोगे. मान लीजिए कोई दूसरा मसाला आप बना रहे हो, उसमें आपने टर्मरिक मिक्स करके बनाया, तो क्या आपने पेटेंट का वॉयलेशन कर दिया? आपने क्या रिकग्नाइज किया? दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट. तो वो मॉडिफिकेशन किस तरीके से न्यू मेथड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज टू बी कंसिडर्ड provides protection for the expression and not for the idea and concept. कई बार मैं लॉ के स्टूडेंट्स को और समटाइम इवन टू द टीचर्स आई हर्ड that they said your idea can be protected. Please remember, your idea is in your mind. Nobody knows आप चोरी करने जा रहे हो, आप कुछ बनाने जा रहे हो. आपने बहुत सारे पकवान पूरी रात सपने में बनाए कि मैंने तो ऐसे 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 इन्वेंशन कर दिया. It is useless. That is your idea. If you express your that idea, maybe आप किस भी फॉर्म में कर सकते हैं. वो किस फॉर्म में हो सकता है? लिख दिया आपने उसको, एक्सप्रेशन राइटिंग में हो सकता है, एक्सप्रेशन किस में हो सकता है? किसी और फॉर्मेट में हो सकता है. तो जैसे ही वो आइडिया एक्सप्रेस होता है, तब वो अधिकार आपका बनता है, तब तक नहीं. आप रिसर्च बहुत अच्छा सोचते रहिए, पर जिस दिन आप थीसिस सबमिट कर देते हैं, तब आपकी थीसिस कंप्लीट मानी जाती, तब माना जाता है आपका रिसर्च वर्क डन हो गया. तो दोनों को कंपेयर करके समझ पाएंगे योर एक्सप्रेशन. आप बीच में तो 2-3 साल तक कितना काम करते हैं, आइडिया रखते हैं, पर वो आपके पास में, उसको एक्सप्रेशन जब मिलता है, देन ओनली दैट कैन बी प्रोटेक्टेड. तो ये चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए. फिर देखिए नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जो नेचर होता है आईपीआर का, वो होता है सबसे पहले ये मोनोपोली राइट देता है. रिसर्चर का भी यही अधिकार मिलता है. आपको भी मोनोपोली मिल जाती, ये मेरा रिसर्च वर्क है, आप ऐसा लगता है दैट इज माय ओरिजिनलिटी, राइट. सेम विद द आईपीआर. IPR have to be renewed from time to time for keeping their
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर कॉपीराइट का एक टेन्योर होता है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल जो कॉपीराइट होता है वो लाइफ टाइम होता है, इसलिए उसको रिन्यू नहीं कराना पड़ता है। ट्रेड सीक्रेट आपने बहुत लंबे समय तक के रखा हुआ तो नहीं, पर आपने अगर ट्रेडमार्क ले रखा है या पेटेंट होल्डर है तो पेटेंट होल्डर को कितने 20 साल बाद आपको क्या करना होगा, रिन्यू कराना होगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं जो आपको रिन्यूअल में जाना पड़ता है। IPR are largely territorial right except the copyright। पेटेंट आपने अगर इंटरनेशनल लेवल पे पीसीटी के अंतर्गत अपना पेटेंट नहीं करवाया है तो आपको केवल टेरिटोरियल नेचर पे मिलेगा, और अगर आपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन ट्रीटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवा लिया है देन इट विल हैव द इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल। बट जो आपका कॉपीराइट है वो देखिए, लॉजिक देखिए, जो बनाने वाले लोग हैं, मैं वाकई ही तारीफ करती हूँ कि दे आर सो इंटेलेक्चुअल। आपको मालूम है आपकी वेबसाइट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी बन के आएगी और आप उससे मटेरियल लेके इंडिया में अपना रिसर्च वर्क कर लें। अगर आप कॉपीराइट को इंटरनेशनली प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो रोज वायलेशन होगा। हर एक जगह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दूसरी जगह कॉपीराइट में, मतलब आपको थीसिस क्या मिलेंगी, जो दूसरी कंट्री की है वो थीसिस आपके यहाँ पे आराम से पब्लिश करा सकते थे, क्योंकि आप बोलेंगे हमने कॉपीराइट वायलेशन नहीं किया। तो आपके सामने बर्न कन्वेंशन जैसी चीज है जो बोलती है कि जो कॉपीराइट होगा वो आपका ऑल ओवर इंडिया होगा, मींस इट विल हैव द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इम्प्लीकेशन इफेक्ट। तो इसको आपको याद रखना है कि जब आप लिखते करते हैं तो वो कैसा इम्पैक्ट होता है। IPR कैन बी असाइंड, गिफ्टेड, सोल्ड और लाइसेंस लाइकली एनी अदर प्रॉपर्टी। क्यों इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं ये भी समझ आ गया होगा कि प्रॉपर्टी का आपके पास यूज क्या होता है, आप उसका जैसा चाहें उपयोग करें, ठीक है, बेच दें, गिफ्ट दे दें, लाइसेंस दे दें, यही प्रॉपर्टी होती है। तो IPR भी यही प्रॉपर्टी आपको प्रोवाइड करता है, और यही आपका रिसर्च वर्क भी प्रोवाइड करने वाला है। आगे देखिएगा आप, आपका रिसर्च वर्क क्या करता है, आपको आप अपनी चाहे तो किताब पब्लिश कर ले, नहीं करना नहीं करना मैं अपने पास रख रहा हूं, मैं बंद करके डब्बे में, नोबडी कैन फोर्स, राइट। आप उस पे स्टोरी जैसा बना दें, उस पे आप वीडियोस बना दें, दैट इज ऑल योर वर्क। इवन दैट PPT इज माय कॉपीराइट, आई एम पब्लिशिंग, but this is my copyright. If somebody will take it, it is a violation of copyright. Okay, so what are the chain to achieve IPR? That will also same with this, right? तो कैसा होगा, फर्स्ट होता है क्रिएशन और इन्वेंशन। सबसे पहले कोई व्यक्ति कोई चीज क्रिएट करता है या इन्वेंट करता है, ठीक है। जब इन्वेंट कर लेता है तो सेकेंड पार्ट आता है इनोवेशन का, क्योंकि हो सकता है सेम चीज पहले किसी ने इन्वेंट कर ली हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। जब वो इनोवेट करता है तब वो उसको एक्सप्रेस करता है, और एक्सप्रेशन के बाद ही आप उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन के लिए फ्री हो जाते हैं। कमर्शलाइजेशन जिसको सेंटेंस में बोलते हैं, तो कमर्शलाइजेशन में पार्ट आता है, पब्लिकेशन भी कमर्शलाइजेशन का पार्ट है, उसका यूटिलिटी जो आप यूज करते हैं, बेचना खरीदना सब कुछ कमर्शलाइजेशन का पार्ट आता है। इसको हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कमर्शलाइजेशन। तो उसमें सब आता है, आपका रजिस्ट्रेशन जो आप ऑफिस में करते हैं वो भी इसका पार्ट होता है, आप इसको कैसे यूज करेंगे, किसको सेल करेंगे, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो प्रोटेक्शन। आपने अपने राइट को कमर्शलाइज कर लिया, बता दिया ये मेरा पावर है, ये मेरा इन्वेंशन है, मैंने प्रोटेक्ट करवा लिया। अब कोई व्यक्ति उसको इन्फ्रिंज करता है तो आपको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि कितना प्रोटेक्शन आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। और इसके बाद आपके पास जो आता है वो एनफोर्समेंट। यदि किसी व्यक्ति ने जो आपको प्रोटेक्शन मिले हैं उनको इन्फ्रिंज किया तो आप उस राइट को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो दिस इज द यू कैन से चेन टू अचीव द IPR। जैसे मैंने इन्वेंशन और इनोवेशन में डिफरेंस बताया है, मेरे ख्याल से आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले न्यू आइडिया का जो, चाहे वो प्रोडक्ट पेटेंट पे हो चाहे प्रोसेस पे हो, किसी भी प्रोसेस को भी न्यू बना सकते हो और प्रोडक्ट को भी। जैसे अभी आप वैक्सीनेशन देख रहे हैं ना, कोविड-19 का, तो अलग अलग कोवैक्सीन सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, ऐसा अलग अलग कोविड शील्ड सुन रहे हैं। तो हर व्यक्ति प्रोसेस डिफरेंट कर रहा है ना। प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं, प्रोसेस, तो कोई व्यक्ति प्रोसेस सेम रखे, प्रोडक्ट चेंज कर दे, कोई व्यक्ति प्रोडक्ट ही अपना क्या कर ले, पेटेंट करवा ले, तो वो सब अलग अलग चीजें होती हैं।
तो दिस इज व्हाट द इन्वेंशन मीन्स. अब ये बन गया एक बार और कोई दूसरा व्यक्ति क्या करे, उसकी प्रोसेस में माइनर चेंज करे, तो वो इनोवेशन हो जाएगा. इसको बोलते हैं इनोवेशन इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यू इन्वेंशन इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विस. अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल की दिया है कि बीच का एक पूरा माइक्रो प्रोसेस का एक बन गया है कि माइक्रो प्रोसेसर ऐसे काम करेगा. अब देखिए आपको हर जगह एंड्रॉइड एक मिलेगा. अब उस एंड्रॉइड को मिला के, सॉफ्टवेयर को मिला के बाकी लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिजाइन बना के कोई अलग लैपटॉप बनाएगा, कोई अलग वो करेगा. तो वो जो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको वो मार्केट में सेलेबल बनाता है, वो उसका इनोवेटिव पार्ट होता है. जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो कोविड शील्ड है वो बनाया गया, तो उसके पहले भी इसको कई जगह यूज किया गया था. कुछ कुछ ऐसी बीमारियां थी पर उसमें माइनर चेंज के द्वारा इसको डेवलप किया. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे. कुछ लोगों को लगता है कि हम डायरेक्ट इनोवेशन नहीं कर सकते क्या, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका फ्रेश न्यू आइडिया कभी भी जंप करके इनोवेशन में नहीं जा सकता. यू हैव टू हैव रिगार्ड और रिस्पेक्ट द इन्वेंशन. ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि ये इन्वेंशन उनके द्वारा किया गया था और उस इन्वेंशन का में मैं क्या चेंज कर रहा हूं. मतलब आपने क्या किया, उसको रिस्पेक्ट दिया, उनके वर्क को रिकग्नाइज किया कि पहले वाले व्यक्ति ने ये काम किया था, इन्वेंशन किया था, और उस इन्वेंशन में मैं इनोवेशन कर रहा हूं. अब देखिए रिसर्चर हैं आप, तो आप क्या करते हैं, दूसरे के वर्क को रिकग्नाइज करते हैं कि मेरे प्रीडिसेसर, मेरे पिछले वाले जो रिसर्चर हैं, उन्होंने ये काम किया और अब मैं इस रिसर्च में ये एंगल लेके इसको नया देख रहा हूं. फिर देखिए, आपकी आइडिया कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इन इंटेंजिबल फॉर्म. देखिए, आप ये जरूर बोलते हैं कि आईपीआर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी पे मिलता है, पर एक तो हमने बोला आइडिया नहीं प्रोटेक्ट होता, दूसरा इंटेंजिबल फॉर्म में नहीं होता. मान लीजिए आपने बोला कि ये मेरी थ्योरी है, ठीक है, वो आइडिया क्या है, आपका बिलीफ है. दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्लैरिटी. आइडिया इज योर बिलीफ. वो एक थ्योरी ऑफ रिसर्च है. इस थ्योरी ऑफ रिसर्च को आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको किसी ना किसी तरीके से क्रिएटिविटी दिखा के लोगों को टेंजिबल फॉर्म में लाना पड़ेगा. चाहे आप किताब लिख के ले आए, चाहे आप आर्टिकल लिख के ले आए, चाहे कुछ बना के ले आए, पर आपको टेंजिबल दिखाना पड़ेगा कि इसके बनाने के पीछे का जो आइडिया है वो मेरा है. तो दैट इज व्हाट. और फिर इनोवेशन के द्वारा मैंने बोला, आपको एक्सपीरियंस लगा कि पहले की इमरजेंसी की जरूरत नहीं थी, अब ट्यूबलाइट ऐसी पतली बन सकती है. बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको केवल दिए हैं. तो ये इनोवेशन करके आप उसको कमर्शियली बेनिफिट उठा सकते हैं. तो क्यों ऐसा है कि हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को या रिसर्च को प्रमोट करते हैं, उसका कारण है कि ये समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ऐसे इनोवेशन नहीं होते तो आप और हम जैसे लोग कितने सारी मेडिसिन के लिए कितना सफर करते. तो रिसर्चर को आपने रिगार्ड किया, इसलिए लोगों ने नई नई मेडिसिन बनाई. इसके साथ ही साथ सोसाइटी के लिए यूजफुल के साथ साथ ये मार्केटेबल है, इसमें प्रॉफिट है. और तीसरा है कि गवर्नमेंट भी इस तरीके के उनको एनकरेज करती है. व्हाट इज रिसर्च, मुझे लगता है थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं फास्ट मोड में चलती हूँ. अभी तक किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन तो नहीं है, मैं कंटिन्यू कर लूँ फिर आपके पूछ सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है. ठीक है, और स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन. कंक्लूजन ही आपका नया होता है. पर ये कंक्लूजन क्या है, आपने एक सर्च भी किया, मान लीजिए आपकी चाबी गुम गई, तब भी तो आप उसको ढूंढ रहे हो, तो क्या वो रिसर्च हो जाएगा? नहीं. यू हैव टू प्रूव दैट योर वर्क इज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी. अब जो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होता है, वो किसके लिए होता है, किसी सॉल्यूशन को मानने के, मतलब आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, एंड यू वांट टू गेट द आंसर एंड टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो उसके दो तरीके हो सकते हैं. एक होता है डिस्कवरी करना एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरी एंड मॉडिफिकेशन, जिसको आप बोलते हैं डॉक्ट्राइनल रिसर्च, है ना. मतलब आप यहाँ पे कुछ नया इन्वेंशन नहीं करते हो, पर आप क्या करते हो, फैक्ट्स नहीं बताते हो. जिसको आप बोलते हो ना कि भाई वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, मैं बिल्कुल आपको वो एग्जाम्पल बता रही हूँ जो आप हर बच्चे को रटा हो. तो अब खोज की थी, इन्वेंशन नहीं करा, भारत अपनी जगह पहले से था.
है ना? ऐसे ही सब लोगों ने अपनी, तो ये पर उन्होंने एक जगह बताई, इतने लॉन्गिट्यूड इतने लैटिट्यूड में यहाँ पे है, तो वो चीजें भी उन्होंने जब लिखी तो अलग ढंग से लिखी। वैसे ही अब धरती को ढूंढा नहीं गया कि पृथ्वी को ढूंढ लिया आपने, मतलब आइडेंटिफाई बना नहीं दिया, इन्वेंशन नहीं हुआ, आपने उसको क्या किया, बताया कि गोल नहीं ऐसी है, या ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने नया इन्वेंशन नहीं हुआ, आपने क्या किया कि बताया कि क्यों चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आपने आइडेंटिफाई किया, विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्ट। तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल। और कुछ जगहों पे न्यू चीजें आती हैं, जैसे बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, उनको मिला के आपने एक न्यू मेडिसिन बना दी विच इज अननोन टू अदर्स, तो ऐसी चीजें इन्वेंशन के फॉर्म में आती है। तो इसी तरीके से हमारा रिसर्च इंपेरिकल और डॉक्ट्रिनल डिवाइड। तो आप जब न्यू आइडिया, न्यू थ्योरी, डॉक्ट्रिन्स के ऊपर बात करते हैं, सेकेंडरी डाटा के ऊपर, तो आप बोलते हैं कि आपने जो रिसर्च है वो डॉक्ट्रिनल किया है। और जब आप अपने रिसर्च को प्राइमरी डेटा के ऊपर बेस्ड करके क्या करते हैं, उसको उस समस्या, उस समाज में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं कि ये देवदासी प्रथा यहीं पे प्रचलित है, इनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको क्या सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा इंपेरिकल वर्क के रूप में आ जाता है। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च और डॉक्टरल रिसर्च जो होता है, उसमें जो आपका आईपीआर प्रोटेक्ट होता है वो होता है कॉपीराइट। और जब आप कोई अप्लाइड या एम्पेरिकल रिसर्च करते हैं, तो जिस राइट के बारे में आप क्लेम करते हैं वो आईपीआर होता है पेटेंट। मेरे ख्याल से इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि डॉक्टरनल रिसर्च है तो आप किताब लिखेंगे, थीसिस बनाएंगे, है ना, और कुछ थ्योरीज में चेंज बताएंगे। तो ये नॉर्मली क्या होता है, ये इसलिए किया जाता है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करें, लोगों को कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पता नहीं है बताने की कोशिश करते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, राइट। जैसे आपने सेपरेशन ऑफ पावर के बीच में और रूल ऑफ लॉ के बीच, दो के बीच का क्या कर लिया, इंटरलिंकेज पढ़ लिया, तो क्या किया आपने, जस्ट अ फंडामेंटल बेसिक को बताया। तो न्यू थ्योरी बनाते हैं, क्यूरियोसिटी है कि हम क्या कर सकते हैं। इसका मेन एम होता है टू डेवलप नॉलेज एंड प्रिडिक्शन, दैट इज द मतलब डॉक्टरल रिसर्च का पार्ट होता है। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रखता है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉपीराइट यूनिवर्सल है, तो आप थीसिस वर्ल्ड के किसी भी कोने में रखें, यदि इट इज पब्लिश तो वो आपको यूनिवर्सल पब्लिकेशन है। नो कमर्शियल वैल्यू अटैच्ड अनटिल एंड अनलेस आप इसको बेचते करते नहीं है, तब तक इसको आपको कोई कमर्शियल यूज नहीं है। आप यूनिवर्सिटी से परमिशन लेके अगर पब्लिश कर देंगे देन ओनली इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सेकेंड, अप्लाइड रिसर्च जिसको हम बोलते हैं, उसको आप जानते हैं कि इसकी यूटिलिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है, वहां के लिए है, परंतु इसका नॉर्मली जब आप इसको कमर्शियली अपने तरीके से प्रोटेक्ट करवा सकते हैं और फिर जब कमर्शियल करवाते हैं तो ये बहुत यूजफुल हो जाता है। जैसे आपने कहीं पे किया कि क्रॉप का जो प्रोटेक्शन है वो कैसे इम्प्रूव किया जाए, सेम कैटेगरी की क्रॉप सब जगह लगाई जा रही थी, पर आपने कोई फर्टिलाइजर ऐसा किया कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो आपने एक नया एप्लीकेशन दे दिया। इंडियन कॉपीराइट एक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप थीसिस लिखेंगे, जो आपका वर्क होगा, जो आप किताब पब्लिश करेंगे, जो आप रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे, जो आप रिसर्च पेपर लिखेंगे, वो सब कॉपीराइट के अंतर्गत प्रोटेक्शन में मिलता है। चाहे आप वेबसाइट पे डालें, ऑनलाइन डालें, ऑफलाइन डालें, इससे कोई मतलब नहीं, आपको कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिलेगा। ये सी जो है आपको मालूम है, ये आपका कॉपीराइट का चिन्ह होता है जिस बुक पे, तो आपको दिख जाएगा कि ये जो है वो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा ना कि आपने बुक का पब्लिकेशन किया तो उसमें कॉपीराइट लिखा रहता है नंबर सो एंड सो, जिसको आप बोलते हैं, हमको तो ISBN और ISSN नंबर समझते हैं ना, कि अगर जर्नल होता है तो उसके नंबर को ISSN नंबर बोलते हैं, और अगर आपकी बुक है तो ISBN नंबर। तो उसका मतलब रहता है कि कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत उनको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। किस चीज का कॉपीराइट होता है, आपका लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिक। अब आपने देखा होगा सिनेमेटोग्राफिक फिल्म कि एक मूवी बनती है, उसमें जो पोयम या जो सॉन्ग्स राइटर है उसका अपना कॉपीराइट है, जिसने सॉन्ग को क्रिएट किया है, 7 धुन तो सबके पास है, वही 7 स्वर हैं, वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
पर उसको लेके उसने नया क्रिएट किया म्यूजिक, तो वो म्यूजिक के लिए उसको अलग मिलेगा, जो सिंगर है उसको अपने लिए अलग मिलेगा, ऐसा है ना, जो डांसर है उसको अलग मिलेगा, कोरियोग्राफर को अलग मिलेगा, यू नो इट वेरी वेल. सो दीज ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर कॉपीराइट. और फिर उसको क्या करेंगे आप, प्रोड्यूसर को सेल कर देंगे और प्रोड्यूसर फिर बेचता रहेगा, आपको लमसम अमाउंट उसने दे दिया. ये आप लोग देखते होंगे. फिर है आर्टिस्टिक वर्क, जो है आपने कितनी अच्छी पोइट्री लिखी, कितना अच्छा पोएट, मतलब आप देखते हैं कि बहुत जगह बहुत सुंदर सुंदर आर्ट वर्क होता है, उन सबको भी कॉपीराइट के अंतर्गत प्रोटेक्ट करवाया जा सकता है. जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपके वो इसके अंतर्गत आते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो बनाते हैं, जो ड्राइंग होती है, प्लांट होते हैं, सब कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए लायबल, मतलब किए जा सकता है. कॉपीराइट जो है वो जो प्रोटेक्शन होता है वो एक्सप्रेशन पे होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसको आपको टेंजिबल मोड में लाना पड़ेगा, या तो पेपर में, या तो सीडी में, या तो डीवीडी में, या कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में, कहीं ना कहीं आप लाएंगे तभी कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं. मतलब जो प्रोटेक्टर है, जो आपको कॉपीराइट ऑफिस है, वो ये मांगेगा आपसे कि दिखाओ भाई क्या लिखा है. It need not to be registered, however, for legal purpose. देखिए, आपका आपने अपनी थीसिस लिखी और 99%, 90% तो कम से कम मेरी नॉलेज में है, वो कहीं पब्लिकेशन के लिए भी नहीं जाते और लोग कहीं कॉपीराइट के लिए भी नहीं जाते. अगर आपने बुक में पब्लिश कर दिया तो आपके बुक सेलर को तो कंपलसरी है कि वो करवा ही लेता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन. पर आप और हम या यूनिवर्सिटी जो है उसका कॉपीराइट ऑटोमेटेड होता है और इट इज नॉट कंपलसरी कि उसका रजिस्ट्रेशन हो. देखिए, किसी थीसिस को आपने यूनिवर्सिटी में जमा किया तो वो यूनिवर्सिटी के पास कॉपीराइट आ जाता है, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसी कॉपी करके कहीं भी करता है तो यूनिवर्सिटी उसको एनफोर्स करवा सकती है कहीं से भी, पर उसको प्रूव करना, एविडेंस देने में शायद मुश्किल हो. इसलिए आपको लीगल सेंस में बोला जाता है कि इंटरेस्ट में होता है किसके, क्रिएटर के, कि वो उसको रजिस्टर्ड करवा ले. पर ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया तो आपको उसका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. और देखिए, एक कॉपीराइट होल्डर और क्रिएटर अलग अलग हो सकते हैं. कैसे? क्रिएटर आप हो गए रिसर्चर और होल्डर यूनिवर्सिटी के पास हो गई. सेकेंड पार्ट, आपने किताब लिखी, आप कौन हो गए, जो राइटर है वो हो गया क्रिएटर, और आपने बोला मुझे तो आप हर साल इतने पैसे दे दिया करो, मैं अपना कॉपीराइट आपको देता हूं, तो होल्डर कौन होगा, पब्लिशर. तो इसलिए कॉपीराइट होल्डर और कॉपीराइट क्रिएटर जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति में हो सकता है. जैसे कि इंडिया में आप देखते होंगे कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर किसी ने आपको कॉपीराइट, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने वहां कुछ नई चीज बनाई है कंपनी में रहते हुए, तो फर्स्ट कॉपीराइट राइट किसके पास आता है, होल्डर कौन होगा, एम्प्लॉयर. ठीक है, और उसके बाद वो आपके आगे जाएगा. अब देखिए, रिसर्च एथिक्स एंड लीगैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए कि कैसे आप आईपीआर से लीगैलिटी के साथ रिसर्च को जोड़ते हैं. देखिए, प्लेजरिज्म इज अ वेरी कॉमन जिस थिंग नाउ डेज, आप सब जानते हैं. प्लेजरिज्म का मतलब होता है स्टीलिंग ऑफ ओरिजिनल. ठीक है, किसी दूसरे के ओरिजिनल वर्क की चोरी करना प्लेजरिज्म है. मे इट बी द कंटेंट, द डिजाइन, थॉट्स, ग्राफ्स, कुछ भी हो सकता है. ये ऑफलाइन या ऑनलाइन भी हो सकता है जो भी पब्लिश्ड है. अब पब्लिश्ड का मतलब, जो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपने थीसिस या डिसर्टेशन मान लीजिए एलएलएम के लिए डिपार्टमेंट में आपके जमा कर दी, तो वो वर्क पब्लिश्ड कहलाएगा क्योंकि 2 और 2 से ज्यादा लोगों ने उसको देख लिया है. तो गलत फहमी ना रखें कि पब्लिकेशन का मतलब किताब के रूप में या किसी मैगजीन में या आर्टिकल में ही उसका आना है. अब प्लेजरिज्म के बाद एक चीज आती है ऑथरशिप. ऑथरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओन वर्क. आपने देखा होगा जब आप लिखते हैं तो आपसे बोला जाता है डिक्लेरेशन दो, सर्टिफिकेट दो. तो गाइड से बोला जाता है आप सर्टिफिकेट दो कि इस बच्चे ने आपके अंडर ही सही काम किया है, और बच्चे से बोला जाता है कि डिक्लेरेशन दो कि ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, किसी और का नहीं है. ये बताता है यू आर द ऑथर ऑफ दैट वर्क.
पीयर रिव्यू आप जानते हैं बहुत कॉमन है आजकल। पीयर रिव्यू का मतलब होता है जब पब्लिकेशन होने लगे उसके पहले पब्लिशर उसको एक्सपर्ट के पास भेजें कि ये जो पेपर है, ये जो आर्टिकल है वो यूजफुल है समाज के लिए कि नहीं। रिव्यू करके बताते हैं कि उसका स्टैंडर्ड कैसा है, उसको पब्लिश। तो ऐसे जर्नल जहाँ पे रिव्यू होता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसको बोला जाता है पीयर रिव्यू जर्नल। तो इसमें एक ऑथर होता है, फिर पब्लिशर बीच में आता है, आप सबमिट करते हैं, फिर वो रिव्यूअर के पास भेजा जाता है, फिर एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद ही वो पब्लिश्ड होता है। फिर एक चीज आपके सामने आती है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है जो आपका वर्क है वो यूजफुल है। अनयूजफुल वर्क जो है वो आपका कभी भी जो है वो क्या नहीं हो सकता, उसको आपको कभी कॉपीराइट नहीं मिलेगा, उसको रिसर्च में नहीं करना है। और इसलिए आपको क्या लिखवाया जाता है, आपसे हमेशा लिखवाया जाता है व्हाट इज द नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिसर्च। आपसे लिखवाया जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ये सब समझ जाइए, देखिए बहुत वर्ड को आप कोरिलेट करना सीख जाएंगे। जैसे आपने लिखा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, इट मींस यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई योर रिसर्च कि मेरी इस वर्क से क्या नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन होने वाला है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस वर्क। फिर एक होता है यूनिकनेस एंड नॉन डिस्क्लोजर। आपको ये भी देना पड़ता है कि दिस वर्क वाज नॉट डन बिफोर और इट इज अ अनपब्लिश्ड वर्क, जिसके लिए आप लिखते हैं अगर रिसर्च के रूप में तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। प्लेजरिज्म के बारे में कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन है मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। प्लेजरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपको पता था, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कैसे भी आपने किसी और के वर्क को कर दिया तो आप प्लेजरिज्म के लिए लायबल हो जाते हैं। आप वहां चिल्लाते रहिए कि मैंने तो देखा ही नहीं था, इट इज अनइंटेंशनल, बट इट विल नॉट बी जस्टिफाइड। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एट द टाइम ऑफ रिव्यू। ठीक है। फिर है लीगल सिक्योरिटी। क्या किया जाता है इसमें, एक्नॉलेज द, कैसे आप अपने आप को सिक्योर कर लेंगे। पहली चीज, कैसे आप प्लेजरिज्म का पार्ट ना बने। पहला, आप चीजों को साइट कर दें, जिसको आप बोलते हैं रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी के रूप में, कि मैंने इस राइटर को पढ़ा, इस जूरिस्ट को, जिसको भी पढ़ा, उनका साइट करते चले, आप लिखते चले, चाहे रेफरेंस में लिखिए चाहे बिब्लियोग्राफी। मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा रेफरेंस का मतलब होता है किसी जगह से आपने एज इट इज कोट लिया है, एज इट इज कुछ लाइनें ली हैं, तब आप उसको फुटनोट एंड नोट्स में क्या करते हैं, रेफरेंसेस में डालते हैं। और बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है आपने केवल उससे असिस्टेंस ली है, एज इट इज उससे कोई किताब से नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल आप क्या करें, तो रिसर्च करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक से ये तो समझेंगे कि हाउ टू डू रिसर्च, तो हेल्प तो लेंगे, पर उसको आप बिब्लियोग्राफी में डालेंगे, रेफरेंस में नहीं डालेंगे। तो ठीक है, जब आप कोट लेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में, अब मान लीजिए आपको ये नहीं पता मदर टेरेसा का कोट है, किसी ने भी पब्लिश किया हो, तो आप क्या करोगे, उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दोगे और नीचे उनका नाम लिख दोगे। तो दीज आर द चेंजेस विच सेज कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया है, कि मैंने दूसरे के वर्ड को क्या कर दिया है, एक्नॉलेज कर दिया है, दैट आई एम नॉट द ओरिजिनल राइटर, दैट फेलो इज अ ओरिजिनल राइटर। और कुछ हद तक परमिसेबल लिमिट दी गई है कि आपके पास चांस है, आपको मालूम है वो 10% है आज की डेट में, वो चेंज हो सकता है। तो गोल्डन रूल यही है अपने आप को प्लेजरिज्म से बचाने का, कि आप वही करें, जो भी लिखे उसको साइट कर दें। टाइप्स बहुत प्रकार के प्लेजरिज्म होते हैं, लोग उसको कैसे समझते हैं, एक तो कंप्लीट प्लेजरिज्म होता है और ग्लोबल प्लेजरिज्म होता है। कंप्लीट मतलब आपने एज इट इज उठा के रख दिया, या ग्लोबल किसी और जगह है उसको लग दिया। एक होता है पैराफ्रेजिंग, मतलब आप अपनी पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, पैराग्राफ को फ्रेज करके खुद लिख दे रहे हैं। एक होता है कॉपी पेस्ट करना, मतलब कुछ पार्ट, पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट कहीं से नहीं लिया, पर कुछ कुछ पोर्शन में कॉपी पेस्ट करा है। या मोज़ेक और पैचिंग करिए, मतलब आपने अपना एक लाइन लिखी, फिर किसी और से एक लाइन लिखी, फिर एक तो है ना मैजिक, मतलब एक मोज़ेक आप जानते हैं ना कि अपन बनाते हैं, पैच करना है, एक छोटा छोटा थिगड़ा लगा देते हैं, वो पैचिंग। और सेल्फ प्लेजरिज्म मतलब आपने अपना एक काम एक जगह जर्नल में दिया और दूसरी जगह उसी को फिर से दे दिया, तो आपने क्या किया, सेल्फ प्लेजरिज्म। तो इस तरीके से प्लेजरिज्म होता है।
स्टाइल ऑफ साइटेशन बहुत प्रकार के हैं, यह मैं आपको बताना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है आप विच काइंड ऑफ साइटेशन यूज करते हैं। पर जब भी आप करें तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से साइटेशन स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, ब्लू बुक ले रहे हैं, एपीआई कर रहे हैं, या एमएलए बुक कर रहे हैं, कौन सा। एक मैंने जैसे अभी ऑथरशिप और पीयर रिव्यू बताया था, उसमें याद रखिए ऑथरशिप का मतलब होता है एक्नॉलेज करना दूसरे के भी कंट्रीब्यूशन को। मान लीजिए कोई आपका ऑथर है, आप लिखते हैं ना एक्नॉलेजमेंट, हर बुक में आपने हर थीसिस में देखा होगा कि डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट के पीस पहले आप क्या लिखते हैं, एक्नॉलेज। मुझे इस व्यक्ति ने कंप्यूटर का सपोर्ट किया, ये मेरा टाइपराइटर था, ये लाइब्रेरी थी जो मैंने यूज करी, तो उसका मतलब होता है एक्नॉलेज। ठीक है। रिकग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर को ऑथर, को वर्कर, इन सबका करना, ये कहलाता है ऑथरशिप। पीयर रिव्यू में जो ध्यान रखना चाहिए कि खुद जो मान लीजिए ऑथर ने बेचारे ने भेजा पब्लिशर के पास और रिव्यूअर ने उसको देखा और खुद अपने वर्क बता, बोले नहीं नहीं ये अच्छा आर्टिकल नहीं है, रिजेक्ट करो, और फिर खुद ही उसमें माइनर चेंज किया और पब्लिश कर दिया, तो दैट हैज टू बी सीन। किसके पास, एक्सपर्ट के पास जा रहा है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रखनी पड़ी है। मान लीजिए मेरे सामने ही मेरे स्टूडेंट या आता है तो मैं उसमें पार्शियल हो सकती हूँ, तो कॉन्फिडेंशियलिटी की किसका है और किसके पास जा रहा है। और कभी भी रिव्यूअर जो है उसको पर्सनल यूज के लिए नहीं करेगा, ऐसे सर्टिफिकेट यूज किए जाते हैं। मेरे ख्याल से व्हाट इज पेटेंट बहुत लंबा चौड़ा मैं बताऊंगी नहीं, अब आपको क्लियर हो चुका है कि ये टेरिटोरियल है, एक्सक्लूसिव यूज के अंतर्गत होता है, 20 ईयर्स के लिए भारत में मिलता है। ये एक्सक्लूड करता है कि दूसरा कोई व्यक्ति आपकी चीज को क्या नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, इसको प्रॉपर्टी राइट माना जाता है। तो ये सब चीजें आपको रिसर्चर के अंतर्गत मिलेंगी। ये रिवोकेबल होता है, जब आपने एक बार पेटेंट कराया, आपको लगा मुझसे गलती हो गई है, इसमें वर्क हो चुका है, तो आप वापस करवा सकते हैं। पेटेंटेबल करवाए जाने का जो किसी भी चीज है उसका कारण होता है, कुछ कंपल्सरी चीजें। पहला आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि दिस इज न्यू और नॉवेल, मतलब इसका कुछ एस्पेक्ट, तो पूरी थीसिस तो आपकी न्यू नहीं होगी, पर कुछ एस्पेक्ट आपका न्यू है, चाहे पेटेंट का हो चाहे थीसिस में हो। इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप, कुछ नया है, नॉन ऑब्वियस है, मतलब लोगों को पहले बोलते हैं ना आप ये तो ऑब्वियस है, मतलब नोन टू एवरीवन, ऑब्वियस मींस नोन टू एवरीवन, तो यू हैव टू प्रूव दैट इट इज नॉट नोन टू ऑल। और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बतानी पड़ती है कि ये कैसे अप्लाई होगा, एप्लीकेशन इसकी होगी या नहीं। ठीक है। इन इंडिया प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दोनों जो है उनका पेटेंट हो सकता है, नॉट फॉल अंडर द सेक्शन। अगर कब हो सकता है, यदि जो चीजें सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ पेटेंट एक्ट के अंतर्गत बताई गई कि देज आर नॉट पेटेंटेबल। कौन सी चीज है, जैसे कोई अनएथिकल चीज है, आपने बोला मर्डर करने का मैंने बहुत अच्छा तरीका इजाद कर लिया, मैंने ये वाले बम गलत तरीके से लोगों को डालने के, तो ऐसे चीजों का बिल्कुल क्लियर लिस्ट है कि क्या क्या नॉन पेटेंटेबल है। या कोई ऐसी चीज जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सन को आप पेटेंट करवाना चाहे, मून को आप पेटेंट करवाना चाहे, नो यू कैन। तो ऐसे बहुत सारे राइडर हैं विच कैन नॉट बी पेटेंटेबल। तो क्यों आपको ये 3 एंड 4 पहले पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप अननेसेसरी अपना टाइम और एनर्जी इस टाइप के रिसर्च में ना करें। कैसे, जो वेल एस्टेब्लिश नेचुरल लॉ है उस पर अपना टाइम मत करके रिसर्च और इनोवेट करके परेशान ना हो। कोई भी चीज जो पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के कॉन्ट्ररी है वो काम मत करिए। जैसे आपने बना लिया डिवाइस फॉर हाउस ब्रेकिंग, तो वो सब चीजें आपको जस्टिफाइड यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट होगा, वो अपने लिए इसमें रिसर्च करवाते हैं। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और प्राइमरी यूज ऑफ इन्वेंशन, जैसे कि हेल्थ के लिए सीरियस कोई चीज है, कॉज है, जो आप बना रहे हो वो हेल्थ के लिए कॉज है, ह्यूमन एनिमल्स प्लांट लाइफ को परेशान करेगा, एनवायरमेंट के अगेंस्ट है, तो ऐसी चीजों पे आपको रिसर्च नहीं करना चाहिए। तो पेटेंट एक्ट आपको एक गाइडेंस देगा। रिसर्च और पेटेंट सिमिलैरिटी है, दोनों ही डिमांड करते हैं कि वर्क किया जाए या इन्वेंशन किया जाए, मतलब डिस्कवरी और इन्वेंशन, वो भी कैसी हो, कुछ न्यूनेस हो, एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड, क्या उससे हाइपोथेसिस जिसको आप बोलते हैं कि रिसर्च में भी आप तभी आगे बढ़े या किसी भी इन्वेंशन में जब आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी ये आउटकम होंगे। सब्जेक्ट मैटर नॉट फॉलन इन पब्लिक ओपिनियन, अगर पब्लिक डोमेन में कोई चीज है तो उस पर ना तो रिसर्च होता है ना पेटेंट होता है, दोनों ही चीजें तब होती हैं जब पब्लिश्ड नहीं है, और नॉट अ पार्ट ऑफ नॉलेज ओरल और अदरवाइज अवेलेबल इन आ इंडिजिनस कम्युनिटी। आप क्या करें, बढ़िया आप एजुकेटेड है, इंडिजिनस पब्लिक उसमें जाए कम्युनिटी में, उनसे बात करें और पब्लिश करें, तो वही रिसर्च और वही पेटेंट है।
कुछ रिसर्च एग्जम्पशंस हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है, कि जैसे कि ट्रेडिशनल जो यूनिवर्सिटी होती हैं उनको एग्जम्पशन दिया जाता है कि उनको अगर उनको आगे रिसर्च करना है तो फीस नहीं देना पड़ेगी, पब्लिक मिशन के लिए कोई काम किए जा रहे हैं, सब आपको मालूम होगा ना, कि आप इतनी कॉपी रख सकते हैं, दो दो कॉपी करवा के, जो उसमें तो कई लोग बोलते हैं कि अगर इतनी इतनी कॉपीज आप अवेलेबल कराएंगे रिसर्च कोई भी कर सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम आती है. मोर पब्लिक रिसर्च इज कैरी आउट बाय द यूनिवर्सिटी टू जनरेट मॉनिटरी रिवॉर्ड. ठीक है, कई जगह पे इसका नहीं किया जाता, तो पब्लिक मिशन और कमर्शियल एम जो है उसके ऊपर कम ध्यान रहता है. बहुत सारी चीजें हैं, वो मुझे नहीं बताना है. जैसे अमेरिका में बेडोले एक्ट है एकेडमिक पेटेंटिंग के लिए, अलग से बिल्कुल बनाया गया है, और इसमें दिया गया है कि कैसे फंडिंग दी जाएंगी एकेडमिक रिसर्च के लिए, क्यों एकेडमिक रिसर्च को फैसिलिटेट किया जाएगा, और उनके लिए ओनरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट टू यूनिवर्सिटी. पहले होता था यूनिवर्सिटी ने किया तो वो गवर्नमेंट की ओनरशिप होती थी, तो यूएसए ने बोला नहीं, यूनिवर्सिटी अपनी ओनरशिप खुद रखेंगी ताकि उनको कमर्शियल बेनिफिट हो. ठीक है, तो ये चीजें कुछ हमारे लिए भी इफेक्ट हुआ है. कुछ चीजों का ध्यान रिसर्चर को और पेटेंटर दोनों को रखना पड़ेगा, कि वो प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों ही चीजों को ध्यान में रखे. केवल एक बार प्रोडक्ट बन गया, मान लीजिए कोई डिस्प्रिन बनी, तो एस्प्रिन बनी थी, पर एस्प्रिन के कई फॉर्मेट हो सकते हैं, तो एक ही चीज की 10 दवाई हो सकती हैं, राइट. तो जब प्रोडक्ट पेटेंट हुआ है एक ही चीज का, लेकिन उसको बनाने की तरीके आप अलग अलग बता सकते हैं, कि मैं इसको इस तरीके से बनाता हूँ. तो आपका प्रोसेस अगर चेंज हो गया, किसी ने मान लीजिए आइस जो है उसको मेल्ट करने के लिए हीट का यूज किया, तो बहुत प्रोसेस में चेंज करना है. एक होता है कंपलसरी लाइसेंस, वो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी गवर्नमेंट यदि कोई जेनरिक ड्रग्स है या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज बहुत यूजफुल है, तो उसको कंपलसरी लाइसेंस में कन्वर्ट कर देगी, और फिर आपको रीजनेबल रेट मिलेगा, उसके बाद आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. और एक होता है बोलार प्रोविजन, कि जब मान लीजिए 20 साल बाद पेटेंट खत्म होना है, तो 17 साल के बाद आप फिर से उसके न्यू प्रोसेस के लिए इन्वेंशन स्टार्ट कर सकते हैं, रिसर्च में इंडल्ज हो सकते हैं. प्रायर आर्ट सर्च मतलब जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके पहले चीजों को सर्च कर लें, ये प्रायर आर्ट सर्च है. इसका मतलब होता है कि आप पब्लिक डोमेन में जाएं और सर्च करें आपका जो रिसर्च काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या काम हो चुका है, किस तरीके से काम हो चुका है, ये चीजें देखने को हम बोलते हैं कि कोई चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है क्या, इसको प्रायर आर्ट सर्च बोलते हैं. उसका कारण जो होता है कि प्रायर आर्ट सर्च जो है वो आपको, जो आप अगर रिसर्च में देखोगे तो आप लिखते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में होता है. इसका मतलब होता है कि आपकी रिसर्च वैलिड है, आपकी रिसर्च जो है वो न्यू डेवलपमेंट ला रही है, आपकी रिसर्च किसी पिछले काम का रिपीटेटिव रिसर्च नहीं कर रहे हैं, और दूसरे के वर्क को इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं. ये कारण होता है प्रायर आर्ट सर्च करने का. प्रायर आर्ट सर्च ना केवल बिफोर द रिसर्च, जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जब आप हाइपोथेसिस टाइटल कर रहे हैं आरडीसी के पहले आपको 6 मंथ का टाइम इसलिए मिलता है, तो प्रायर आर्ट्स आप सर्च करते हैं टू नो ना, टू नो योर जेन्युइनिटी, कि आप उसमें जेन्युइन वर्क कर पा रहे हो कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, कितना मनी लगेगा, अकॉर्डिंगली यू शुड चेंज यू. बट ड्यूरिंग योर रिसर्च वर्क ऑल्सो आपको 6 मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है. उसका मतलब होता है आप हर ड्यूरेशन में प्रायर आर्ट सर्च कर रहे हैं. मान लीजिए आप किसी लॉ को लेके चले और तुरंत आज की डेट में एक नया लॉ आ जाए, तो क्या करेंगे, आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने जब स्टार्ट किया था एट दैट टाइम आई वाज ऑफ द व्यू कि डेटा प्रोटेक्शन इज नॉट अ वैलिड लॉ इन इंडिया. नाउ अडेज एकदम से तुरंत एक्ट आया और वैलिड लॉ बन गया. आप ट्रिपल तलाक के ऊपर अपनी थीसिस लिख रहे थे और ड्यूरेशन उस ड्यूरिंग में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया. तो दिस इज व्हाट द ड्यूरिंग रिसर्च है, और ये यहाँ से सर्च किए जा सकते हैं. WHO, वाइपो जो है, EPO है, प्रायर आर्ट सर्च. इंडियन अगर आप है तो आप कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे, तो आप इंडियन कॉपीराइट ऑफिस, इंडियन पेटेंट ऑफिस, अदर ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो है वहां पे जाके इनका आप डेटाबेस नॉर्मली देख सकते हैं कि कहीं आप गलत काम तो नहीं कर रहे हैं. इन दिस वे आई कैन going to sum up my presentation by saying कि it would be extremely risky for any researcher to enter in a research process without knowing or without having the knowledge of IP, maybe the patentability or the prior art search or the copyright, whatever it is. No doubt that knowledge of the patent and copyright is a research must for all the scholars. And with this, I would like to thank all of you for giving appreciation query. If there is any query and question, let me know.
Thank you, ma'am, for your valuable time. Ma'am, one question is asked: what is the most common violation of intellectual property? Okay. Most common violation is the, I can say, without acknowledging the prior work, right? They are infringing that and they are using. Use of that intellectual property for your own benefit is a common violation of the IPR or the patent act. Any IPR is used without any knowledge, without record. For example, you are giving your publication, right? Publisher को आपने अपना वर्क कॉपीराइट में दे दिया, आप बुक पब्लिश करें. उन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1000 कॉपी पब्लिश करेंगे, वो 3000 भी कर लें तो इट विल नॉट नो, आपको पता ही नहीं चलेगा, or they will violate your copyright. So these kind of commercial or misuse of the copyright is the common. Thank you, Any ma'am. other query? No, ma'am, too many questions are Okay, there. thank But you so much. one of these I want to. Okay, even though if they are having any issue, you are having my email ID, they can contact me. You are having my contact number. If anyone is interested, they can ask. Okay, Students, ma'am, one more question. It is the last question. Is there any software by which we can check the image flag? yeah, there are a number of software. Urukund is there are number of software. Which university is providing which kind of software? Right, there are a number of software. Even though for trial this is 15 days trial for plagiarism is available. A short 1000-word plagiarism can be checked in a online ways. There are software. Now I would like to invite Mr. Sunil Sharma sir for vote of thanks. Okay. Sunil sir, are you there? Yes, Yeah, ma'am. yes, ma'am. Thank you, Rachna, ma'am. It's my privilege to express my sincere gratitude to Dr. Mona Purohit, madam, for her valuable inputs and information related to intersection between research and IPR and information about GI, trademark, and copyright. I hope this session is helpful to our students. I also thankful to our university management, technical team, faculty members, and my dear students. Thank you, ma'am.